So good evening students, let us continue our discussion. So today also I am going to discuss some objective questions based on determinants. Okay, let's see the first question. Determinant 1 log y base x, ये बेस में x है, ठीक है, log z बेस x, log x बेस y, 1 log z बेस y, log x बेस z, y बेस z 1. इस ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, ठीक से देख लो, बेस में कुछ है, सब रो और कॉलम में बेस में कुछ है लॉग का. ठीक है, अच्छा, कुछ लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट चाहिए इसमें. log a base b can be written as log a by log b. ये तो सबको पता है. ओके, log a base b can be written as log a by log b. So here also I can use this property. See the first row. See the first row of this determinant. The first element is 1. 1 के साथ log का कोई कनेक्शन ही नहीं है इसमें, yes or not? लेकिन बाकी दो एलिमेंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ log में है. तो ये 1 को भी इन टर्म्स ऑफ log में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. We know log x base x is equal to 1. अभी log मैं x base x के बारे में क्यों सोचा? Why not I'm writing y base y? Because in the first row you see the base में x है, तो इसीलिए मैं x base x के बारे में ही सोचा. सिमिलरली सेकेंड रो में देखो बेस में y है तो मैं y के बारे में सोचूंगा. थर्ड रो में बेस में z है तो z के बारे में सोचूंगा. ठीक है, इसीलिए मैं x के बारे में सोचा. We know log of x base x is equal to 1. So this 1, the first element of this determinant, this 1 we can replace it by log x by log x, yes or not? Since log x base x is equal to 1 and we know the property log a base b is log a by log b, so log x by log x. Second element can be written as log y by log x. Third element can be written as log z by log x. Similarly, now you check the second row of this determinant, log x base y. Log x base y can be written as log x by log y. This one can be written as log y by log y. Now here I am using log y by log y. Why? Because अभी देखो सेकेंड रो में बेस में हमेशा y है, तो इसीलिए मैं y के बारे में लिखा. Third element is log z base y. So log z base y can be written as log z by log y. Okay. Now check the third row of this determinant. Third row can be written as log x by log z. This is log y by log z. And the last element, this one, we can replace it by log z by log z. Yes? So in this way we can arrange this determinant. Okay? इसके बाद अभी क्या लिख सकते हैं बोलो, क्योंकि इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ना. कंटिन्यू कर रहा हूं यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, ये इसका नहीं है, ये सम का नहीं है. सो देखो, नाउ लुक एट द फर्स्ट रो. फ्रॉम द फर्स्ट रो कैन आई टेक 1 बाई लॉग एक्स कॉमन? ये तो डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी है. फ्रॉम ए रो और फ्रॉम एनी कॉलम वी कैन टेक आउट द कॉमन फैक्टर्स. सो हियर आल्सो यू सी 1 by log x, we can take out 1 by log x common, so 1 by log x को बाहर लेके आओ. Similarly from the second row we can take out 1 by log y common. From the third row we can take out 1 by log z common. देख लो. Okay, so if I take out 1 by log x, 1 by log y and 1 by log z, then what will be the first element? First element will be log x, next log y, next log z. Similarly here also see log x, log y, log z, again log x, log y, log z. I am taking out common 1 by log x, 1 by log y and 1 by log z. ठीक है, okay. So 1 by log x, 1 by log y, 1 by log z तो रहेगा. अभी ये डिटर्मिनेंट को क्या करना है? डोंट गो फॉर एक्सपांशन. अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट गो फॉर एक्सपांशन इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव. log x, log y, log z, log x, log y, log z. डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज or any two columns of a determinant are identical,
आइडेंटिकल मीन्स सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सेम होगा तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स 0। थर्ड रो के बारे में और कुछ मत सोचो, क्योंकि फर्स्ट दो रो नहीं तो सेकेंड एंड थर्ड रो नहीं तो फर्स्ट एंड थर्ड रो आइडेंटिकली तो है ना। सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स 0, सो 0 इंटू एनीथिंग आंसर विल बी 0। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत आसान है क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question you see, if determinant x, y, z minus x, y, z, x minus y, z is equal to k x, y, z, k x, y, z, then what is the value of k? k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसा केस में भी प्रॉपर्टी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम इफ आई टेक आउट x तो रहेगा क्या 1 minus 1 1। फ्रॉम द सेकेंड कॉलम इफ आई टेक आउट y 1 1 minus 1। फ्रॉम द थर्ड कॉलम इफ आई टेक आउट z should be 1 1 1। दिस इज इक्वल टू k इंटू एक्स वाई जेड। ठीक है, कॉमन ले लिया, कॉमन है, पॉसिबल है इसलिए कॉमन ले लिया। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, राइट। अभी k का वैल्यू फाइंड आउट करना है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी x y z के साथ समथिंग कुछ कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, तो फिर जाके कंपेयर करने से k का वैल्यू मिलेगा। ओके, सो x y z, नाउ यू कैन गो फॉर एक्सपांशन बिकॉज हियर स्मॉल एलिमेंट्स आर देयर, एवरीथिंग 1 1 1 है। सो इफ यू गो फॉर एक्सपांशन 1 plus 1, I'm expanding along first row, second element is also 1, so minus 1 minus 1, third element is also 1, minus 1 1 minus 1, which is equal to k x y z। ठीक है, तो यहां से x y z एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी इसको कैलकुलेट करने से जो वैल्यू मिलेगा वही k का वैल्यू होगा। क्या मिलता है यहां से 2 plus 2, बिकॉज 1 minus 1 is 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। minus 1 minus 1 is -2, -2 into -1 is +2, 1 plus 1 2, तो 2 plus 2 4, सो k का वैल्यू मिल गया मुझे 4। ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व। ओके, आई विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस।